वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग असाइनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हम रीडिंग करेंगे। और ये है CBSE अलाउज डिसकैलकुलिया स्टूडेंट्स टू यूज़ कैलकुलेटर्स। तो ये एक न्यूज़पेपर से मैंने कटिंग निकाली और ये मुझे रिलेटेड भी लगी और रीडिंग के लिए भी अच्छी रहेगी। तो आज इसे पढ़ेंगे और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो है उस शब्दों की तरफ ध्यान देंगे और सीखना ज़रूरी है। लर्निंग प्रोसेस में हमें होना ज़रूरी है। ये डिसकैलकुलिया जो आप थोड़ा सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, इसके बारे में भी वीडियो के एंड में बताऊंगी, मतलब लास्ट में। पहले रीडिंग करना ज़रूरी है, तो पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद ये थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इसको। वो रिंगटोन थी, कॉल आ गया था। तो बैक टू द टॉपिक, तो इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो आइए करते हैं। To help students suffering from dyscalculia and other calculation related disorders, the Central Board of Secondary Education (CBSE) has decided to allow children with special needs (CWSN) use a basic calculator starting from this year. Students who have already registered for the upcoming class 10th and 12th board exams under the CWSN category will be able to avail this facility. अच्छा, अब जैसे हमने ये पढ़ लिया, बट इसमें आपको कुछ मुश्किल लगे कोई वर्ड, तो आप उसे बार बार रीड कीजिए, उसे अंडरलाइन कीजिए, उसके मीनिंग निकालिए, ठीक है। घबराना नहीं है किसी भी वर्ड से, किसी भी चीज़ से। Teachers, NGOs, principals and students were seeking a solution for CWSN students. They informed CBSE about the struggle of students with dyscalculia while solving arithmetic problems during exams. To help them, we decided to allow them to use a basic calculator, says Sanyam Bharadwaj. अच्छा बच्चों, अगर आप क्लास में रीड करते वक्त आपकी टंग ट्विस्ट हो जाती है, कहीं आप पे नहीं किसी वर्ड को पढ़ पाते, तो वहाँ हिचको मत, रुको मत, और ना ही क्लास को ऐसे देखो। और क्लास का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट पढ़ते हुए इस तरह करता है, हो जाता है, आपको भी हो सकता है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। पेशेंस रखना है। Controller of Examination CBSE while talking to Education Times, this new move, adds Bharadwaj, will be in addition to the already existing exemptions and or concessions offered by CBSE to CWSN students. Some of these concessions include class 10th mathematics and science question paper in Braille for blind students, usage of large font in maths and science paper for visually impaired candidates, and for allowing the use of a computer or laptop for all disabled students. अच्छा बच्चों, जहाँ पढ़ते हुए फुल स्टॉप आता है वहाँ आप पॉज देना है, और जहाँ कॉमा आता है वहाँ हल्का सा पॉज देकर पढ़ना है, ठीक है। किसी और से मिस्टेक हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, पर हमें अपनी मिस्टेक सुधारनी है। CBSE has taken measures to help students with special needs. It is time to support students with learning disabilities and dyscalculia, he says. Students who want to avail this facility must send their request to the school along with a certificate of disability as proof by January 28, 2020. Principals, after a discussion with concerned teacher, need to send this request to the regional CBSE office for verification. CBSE will arrange the basic calculators depending on the number of CWSN students each exam center has to accommodate. However, no candidate is permitted to bring a calculator from home, says Bharadwaj. He adds that once a regional CBSE center receives the final list of students with special needs from each school under its umbrella, the same will be sent to the board to make arrangements for the calculators required. अब बच्चों, यहाँ पे हमारी रीडिंग एंड होती है। उम्मीद है आप रीड करोगे और लर्न करोगे। लेकिन अब बात आती है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जब मैथ समझ में नहीं आता है। तो अब आप सोचोगे कि मैथ तो आपको भी समझ में नहीं आता है, कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज आती है, तो क्या सबको डिसकैलकुलिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबको नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं उनको इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको कैलकुलेटर्स तक प्रोवाइड करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो आपको तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसे अपने अंदर कोई हीन भावना नहीं लानी है कि भाई मुझे तो मैथ्स नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि मुझे डिसकैलकुलिया है। या जिन बच्चों को डिसकैलकुलिया है
तो उनको भी ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है। बस बात इतनी सी है कि आपको लगे रहना है, पढ़ते रहना है, रेगुलर रहना है पढ़ाई के प्रति, और डेली आपको अपने पढ़ने के लिए टाइम देना ही देना है। और अगर ये प्रॉब्लम आपको है भी तो आप इससे निकल जाओगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस पढ़ते रहना है और पढ़ाई से जी नहीं चुराना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आपकी पढ़ाई के अंदर हेल्प करेगी, और मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आप देखते रहना और सीखते रहना और लर्न करते रहना, और जो भी आपके सजेशंस होंगे मैं उनको ज़रूर से सुनूँगी, अप्लाई करूँगी। और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बच्चे हैं बच्चे की तरह खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। लव यू, बाय।